Three, two, one. Deepa Sinha, very, very warm welcome to Lights Camera Azadi. It's a pleasure to have you here. Thank you. Thanks. दीपा आपका वर्क काफ़ी इंस्पायरिंग है आपका रिसर्च आपका काम वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट ओवरऑल योर जर्नी हाउ आपकी जर्नी कैसी रही थी हाउ हैज़ इट बीन एंड बेसिकली क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे दैट लेड यू टू गेटिंग इनटू दिस वेरी अमेजिंग रिसर्च ऑफ राइट टू फूड न्यूट्रिशन एटसेट्रा वहाँ पे आप कैसे पहुंचे Yeah, it's been quite a long journey now. Usko, how it started is my education was in economics in my BA and MA, and I felt that that was too narrow and that I needed to broaden a little bit. So I did a 1 year master's in development studies at SOAS in University of London to give me a slightly non-economic perspective also of social issues. उसके बाद जब मैं वापस आई वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई मीन आई वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग अराउंड डेवलपमेंट आई हैड एन इंटरेस्ट इन women and children and I am from Hyderabad, so I started working in areas around Hyderabad in Rangareddy district, and I got a fellowship from the what used to be known as the Makatar Fund for Leadership for 2 years to work on maternal and child health. सो वो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया लोगों को चीज़ों को समझने में इश्यूज को समझने में इन दोज 2 years आई learned a lot of things of those mainly were around the importance of public health services for the poor, particularly for mothers and children, and also the importance of nutrition that hospital दवाई टीका देने से ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी, that it was already by the time they got pregnant दे वर अनीमिक दे वर सो malnourished कि उस समय फिर वो ऑलरेडी रिस्की थे सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू न्यूट्रिशन इश्यूज एंड उसी समय में सुप्रीम कोर्ट में काफी ऑर्डर्स आ रहे थे मिड डे मील को यूनिवर्सलाइज करते हुए आंगनवाड़ी कार्यक्रम को यूनिवर्सलाइज करते हुए सो आई गॉट लिंक्ड अप विथ अदर्स वर्किंग ऑन दीज इश्यूज एंड दैट्स हाउ when I moved to Delhi, I became part of the Right to Food campaign, the Supreme Court commissioners, then decided I would do a PhD on similar issues and worked many years in the civil society space and then got into full time academics and teaching. So that's been the journey. दैट इज़ फैंटास्टिक दीपा। दीपा जब हम राइट टू फूड की बात करते हैं, खाने के अधिकार की बात करते हैं तो शायद एक आम नागरिक मतलब हम जैसे लोगों को शायद ये एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आता बिकॉज़ प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं। तो ह्यूमन राइट्स भी पीपल लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट टू वोट एटसेट्रा वी अंडरस्टैंड। राइट टू फूड थोड़ा-सा यूनिक है और स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या ये इज़ इट वेरी इंडिजिनियस राइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट or yeah globally we talk about right to food etc. What do we exactly mean by right to food and what is the demand from the state? Right. So, firstly, it's not something unique to India. The right to food has been recognized as one of the core socio-economic rights. There are UN conventions, economic, social, cultural rights का एक convention है जिसको इंडिया ने भी sign किया है. The human rights framework of the UN. All of this recognize right to food as one of the fundamental rights that should exist. In the Indian context, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फूड तो स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है, but we do have the Article 21, which is right to life. So many in the civil society and even in the Supreme Court case that I mentioned have argued that right to life का मतलब कुछ नहीं है अगर right to food ना हो. Correct. And there are earlier Supreme Court judgments which says that right to life means right to life with dignity. तो अगर अब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का बात करें तो फूड बिकम्स क्वाइट सेंट्रल। अगर एक इंसान को बस अपना हर मील के लिए ही चिंता करना पड़े देन दैट इज नॉट अ लाइफ विद डिग्निटी दैट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर अ सिंगल मील ऑल्सो। So that is where it comes from conceptually. But what you asked, then of course the other question becomes that where does the state come in all of this? अगर हम कह रहे हैं कि ये हक है तो स्टेट का क्या रोल है? तो ब्रॉडली वन थिंक्स दैट वन इज नॉट सेइंग देयरफॉर राइट टू फूड है तो सरकार को जाके हर मील सबको खिलाना चाहिए, दैट इज नॉट व्हाट वन मीन्स, बट द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू से दैट इट विल प्रोटेक्ट द राइट टू फूड ऑफ पीपल. So it might have to do direct feeding for some sets of people. It might have to give some kinds of subsidies for others. It might also have to set up a larger framework for how people can access their right to food. So there's a combination of things that the state will have to do. But it means that the state is the final obligation to ensure that nobody sleeps hungry.
कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो तब सरकार को खाना देना पड़ेगा, और हमारे देश में ऐसी परिस्थिति कंटिन्यूअसली रहती है अनफॉर्चुनेटली. So it's not like an emergency measure. You need a lot of things to be put in place as well. और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? So measure is it's an interesting and a tough question. So it's hugely controversial on how you measure hunger. एक डायरेक्ट चीज हो सकता है कि लोगों से जाके पूछो भूखे हो कि नहीं. But that's very dependent on perception. It's also जिनको कोई भी खाना नहीं मिलता है, उसको एक बार भी मिल गया तो वो बोलेगा हाँ ठीक है. Right? So there are certain norms, जैसे FAO के norms हैं on the minimum calories required for you to lead a healthy life. जी, So that's one way of measuring. उसको measure करना मुश्किल है क्योंकि हर व्यक्ति कितना खा रहा है, कितना जरूरत है, वो थोड़ा मुश्किल है. The other way of measuring is to look at nutrition outcomes, कि अनीमिया कितना है, कितने बच्चे स्टंटेड है, मतलब उनका जितना हाइट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, कितने बच्चों के वेट बहुत कम है उनके उम्र के हिसाब से या उनके हाइट के हिसाब से. There are standardized global norms for all of this, and a combination of these can are usually used to measure the levels of food security. हुँ, करेक्ट। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि वी नॉट जस्ट वांट कैलोरीज़ आई थिंक हम थोड़ा-सा एक वी वांट अ बैलेंस्ड डाइट, इज़ इट? Correct. So yeah, that is what I wanted to come to also. So now the understanding is, पहले होता था कि फूड मतलब भूखे नहीं रहे, कि कुछ भी खा लो कि पेट में वो भूख का सेंसेशन ना रहे. But the world has moved forward to understand that when we even talk about food, it's about the food that the body requires to lead a healthy life. जी, और अगर हम फूड को उस तरह से समझे तो फूड और न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस फिर नहीं रह जाता है. जो हम लोग स्कूल से सीखते हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, यू शुड हैव फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, दैट्स व्हाट द बॉडी रिक्वायर्स. सो एंड अभी उस लेवल की गरीबी नहीं है, फैमिन्स नहीं है कि हम बस कुछ अनाज मिल जाए तो उससे सेटिस्फाई रहे. सो हंगर इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट यूर ईटिंग, नॉट जस्ट कि हाउ क्या मच यूर कंज्यूमिंग, कि क्या खा रहे हैं. पर ये जरूर है कि न्यूट्रिशन आउटकम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, सिर्फ खाने से होता नहीं है. मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे गंदगी बहुत है और इसीलिए आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, तब भी आप अनीमिक हो सकते हैं या कुछ और मेल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर हो सकता है. सो इट्स फूड प्लस प्लस when it comes to nutrition. But food is not just अनाज. Food is जो हम थाली का फोटो देखते हुए बड़े हुए हैं, कि उसमें चावल भी हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो, अंडा भी हो, दूध भी हो, एक्सेट्रा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय फूड. हुँ। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ओवरऑल मतलब आप कैसे बोलेंगे कि इंडिया बिकॉज़ हमारा तो काफ़ी हिस्टोरिकली चैलेंज रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके हमारा लिटरेसी रेट धीरे-धीरे मतलब वैसे ही वाइड स्प्रेड देयर वाज़ पॉवर्टी फिर देन वी ट्राई टू गेट द पॉवर्टी का थोड़ा-सा हमने मेजर्स लिए, उसको कम करा, इकोनॉमिक ग्रोथ करी। तो हमारा ट्रेडिशनली लोग हमारे यहाँ पे हंगर रहे हैं। तो ओवरऑल हाउ विल यू रेट कि इंडिया किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ऑन अ मैक्रो लेवल इन दिस आर आवर मेजर्स इनफ दैट और आर आई मीन व्हाट इज द गैप राइट नाउ भी और क्या कर सकते हैं बिकॉज वी कीप हियरिंग थिंग्स ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेन्स ट्राइंग टू प्रोवाइड फूड कोविड के टाइम में हमने सुना कि द गवर्नमेंट मेड 70-80 करोड़ लोगों को खाना दिया एटसेट्रा वी कीप हियरिंग दिस इलेक्शन में भी बहुत हम सुनते हैं बट हमें पता नहीं है बट वी स्टिल सी अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड पीपल डाइंग ऑफ हंगर तो वो डिस्कनेक्ट किधर इंडिया कैसा कर रहा है? सो प्रोग्रेस तो रही है काफी, इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, बट डेफिनेटली जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा है, विच इज वाई देर आर सो मेनी ऑफ अस. एंड जैसे आपने कहा कि अभी भी चुनाव में फूड और ये 5 किलो 10 किलो इश्यू बनता है, ऑल्सो शोज दैट वी आर नॉट रीच द सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो कुछ चीजों में हमने काफी तेजी से प्रोग्रेस की बाय द 60s इटसेल्फ, व्हिच इज इन द फूड अवेलेबिलिटी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो जितना राइस और जितना व्हीट का जरूरत है उतना अब होता है. वी आर नॉट इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर आर सीरियल्स. पर वो भी थोड़ा अगर आप एक्सपैंड कर लें, दाल तेल वगैरह हमें अभी भी काफी हद तक इम्पोर्ट करनी पड़ती है. बट व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कि वन इज की प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो सबको इक्वली तो मिल नहीं रहा है. और फूड कैसे मिलता है लोगों को? या तो आप खुद से उगाओ, या या आप मार्केट से खरीदो, या आपको स्टेट या कोई चैरिटी या कोई एनजीओ कोई दे रहा है. तो खुद से उगाना तो ऑब्वियसली सब लोग नहीं कर सकते हैं उतना, इट डजंट मेक सेंस आल्सो फॉर द इकोनॉमी.
एंड जो डेटा भी यही दिखाता है कि अबाउट 80% ऑफ द पीपल हु आर इन एग्रीकल्चर, वो लोग फिर भी खाना मार्केट से भी खरीदते हैं, मतलब उतना भी नहीं उगा रहे हैं जिससे उनका अपना पूरा हो जाए। सो द मार्केट इज अ बिग सोर्स, एंड मार्केट से आपको लेना है तो दो चीजें जरूरी हो जाती है। वन इज योर इनकम्स, दैट यू आर एबल टू अफोर्ड इट, एंड सेकेंड इज द प्राइजेस इन द मार्केट, कि आपके इनकम के रिलेशन में वो ऐसे दाम में मिल रहा है कि आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो। इसमें Considering enough मेन supply is there. Considering enough supply is there. considering enough supply is there. So I'm saying a supply though has been taken care of to a large extent. Correct. So it's mainly about people being able to afford what is available. And there is a huge problem still in India, which is that there is a large number of people who have very low incomes. And we have to recognize that income पे बहुत सारे चीजों की pressure होती है. It's not just food. Education, health, transport, all of these are also becoming more and more expensive. एंड अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, जो एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट में भी आया है, कि पर्टिकुलरली साउथ एशिया में द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, कि जो हमारे जैसे इंडिया में इन लोगों ने लिया जो आईसीएमआर का डाइट होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि हेल्दी होने के लिए लोगों को क्या खाना चाहिए। अगर हम उस खाने का चीपेस्ट सोर्स लेके हिसाब लगाएं कि कितने लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, बाय जी। दिस स्टडी over 50% of people in India are not able to afford, actually 70% are not able to afford a healthy diet based on their current levels of income. So that's a huge problem, and that is related to the unemployment situation, that's related to इनफॉर्मलाइजेशन की, मतलब जिनको काम मिल भी रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, रेगुलरली नहीं मिल रहे हैं, वेजेस आर लेस देन मिनिमम वेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दैट इज व्हाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट सरकार क्या कर रही है बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, कि टिल द टाइम दिस इज टेकन केयर ऑफ, द थर्ड सोर्स दैट आई सेड विच इज थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स, ये जो पीडीएस में अनाज, स्कूल में मध्याह्न भोजन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि परिवारें बहुत सारी ऐसे हैं जो खुद से तो नहीं खरीद पा रही है, so that has to be topped up by the government at least till such a time where they're able to afford it on their own. वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, बिकॉज़ आप बता रहे हो कि 70% लोग हैं जो एक आइडियल प्रोपोर्शन है खाने का, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। वो नंबर बता सकते हैं क्या? वो कितना अमाउंट में कितना बनता है? कितने रुपीज़ होने चाहिए वो पर वो मील के, या क्या कुछ इफ यू कैन थ्रो सम? Uh, I would have to check because the study is in PPP dollars and so on. But this is state SOFI report कहते हैं इसको, State of Food Insecurity, जो FAO निकालता है, and it has हर country का they have the नहीं, इंटरेस्टिंग है। ये बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ ये जो हमारा हमें एक बहुत पॉपुलर और आर्गुमेंट है, स्पेशली आई थिंक फ्रॉम द पास्ट 1 डिकेड दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया आल्सो, कि द स्टेट शुड प्ले अ मिनिमम रोल, लेट पीपल गो एंड अर्न मोर मनी एंड लाइक ऑल ऑफ दैट। खुद पैसा कमाएँ, खुद करे, स्टेट इंटरवेंशन हर लेवल पे कम होता जाए। बट ये रेलेवेंट नहीं है इंडिया के, मतलब जब आप ये सब डेटा, व्हेन यू थ्रो सच डेटा पॉइंट्स कि यार 70% लोग एक बेसिक न्यूट्रिशन ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू कैन रिमूव द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट? पीपल विल लिटरली डाई। Absolutely. So that I think is not correct at all. And in fact, मतलब लोग खुद जाके कमाए, मतलब लोग मना नहीं कर रहे हैं खुद जाके कमाने से, काम नहीं मिल रहा है ना। I mean, we have to also understand that whole thing of employment is not an individual fault. We know that a lot of people are looking for work, they're not finding work. Yeah, the work they're finding is of very poor quality. तो आपको, that's what informalization means. तो उसमें भी स्टेट का रोल है। अगेन इट डजंट मीन कि स्टेट जाके सबको नौकरी दे, पर ये किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वो भी आपको करने की जरूरत है। एंड इन द मीन टाइम, लाइक यू सेड, यू कांट लेट पीपल स्टार्व, यू कांट लेट पीपल बिकम मैल नरिश्ड, क्योंकि उसका भी फिर इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। अगर आपका पूरा जनता ही माल नरिश्ड है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, तो वो उस तरह का काम भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे माल नरिश्ड है तो स्कूल में सीख नहीं पाते हैं, वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। अगर अनीमिक है तो वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। वो उस बच्चे की गलती नहीं है। इट्स नॉट दैट द बच्चा हैज अ लो आईक्यू और समथिंग लाइक दैट, इट इज दैट देव जस्ट नॉट गॉट द बेसिक इनपुट्स नीडेड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल इक्वली। सो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, एंड सर्टन थिंग्स आई डू वांट टू ऐड, दैट जितना भी एडवांस्ड कंट्री हो ना, फूड में बहुत सारे चीजों में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इवन इन अ वेरी प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी लाइक से द यूएस।
you will see कि the US intervenes heavily in agriculture to ensure that food prices are kept low. मतलब वो अपने फार्मर्स को बहुत सब्सिडाइज करते हैं ताकि फार्मर्स को अपना इनकम मिलते रहे, लेकिन फाइनली सुपरमार्केट में जो खाना आता है वो चीप रहे। सस्ता रहे। या दे ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड अ वुमेन इन्फेंट चाइल्ड प्रोग्राम, जिसमें वो फूड वाउचर्स देते हैं कि आप मिल्क पाउडर खरीदें, आप कुछ कुछ चीजें आप खरीद पाए फॉर द बेसिक। दोज हु आर लोअर इनकम देयर। स्कूल मील्स इज समथिंग दैट इज देयर इन ओवर 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना खिलाना। सो इट्स नॉट समथिंग अगेन दैट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ ओनली द इंडियन गवर्नमेंट। दीज आर बेसिक फंक्शंस दैट अ गवर्नमेंट प्लेस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। गॉट इट। एंड इसमें कितना रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है और कितना रोल यूनियन गवर्नमेंट का रहता है? तो अभी इंडिया में जिस तरह से डिवाइडेड है, मच ऑफ द फंडिंग कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर पीडीएस है, मान लीजिए दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एफसीआई आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे बाय द ग्रेन, दे स्टोर इट, दे गिव इट टू द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेट करते हैं, लेकिन वो वहां से बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है। कि ये पहचानना कि किसको राशन कार्ड देना है, किसको राशन कार्ड, राशन का दुकान चलाना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होगी, कैसे पहुंचेगी, ऑल दैट कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जी। और बट इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है क्या? बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट में से कि यार मैं इस ग्रुप को एड्रेस करना चाहता हूँ फॉर फॉर फूड सेफ्टी मेजर्स, बट द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट वांट टू डू इट बिकॉज उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंपेन है, उनको वोट में फायदा होगा। ऐसा हो देखा है आपने? इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। व्हाट डज हैपन इज दैट इट डज बिकम अ पॉलिटिकल इशू, बट व्हाट मेनी स्टेट्स डू इज दे गो बियॉन्ड व्हाट द सेंटर इज गिविंग देम। जैसे अगर सेंटर दे रहा है 30% पॉपुलेशन के लिए, स्टेट बोलेगा कि मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा के और 30% को दूंगा। या अगर सेंटर दे रहा है 3 रुपए किलो में चावल, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा मैं अपने पॉकेट से लगा के, बेनिफिशियरी विल हैव टू पे ओनली 1 रुपी और इट विल बी फ्री। सो मेनी प्लेसेस स्टेट्स ट्राई एंड डू एक्स्ट्रा। या कहीं पे जैसे सेंटर सिर्फ राइस और व्हीट देता है, तो स्टेट कहता है कि हम दाल भी देंगे या हम तेल भी देंगे। दैट हैपेंस, बट स्टेट्स आर नॉट अदरवाइज हैव नो इंटरेस्ट इन रिड्यूसिंग द बेनिफिट दैट कम्स टू देम, बिकॉज वो तो लोगों को भी इतना तो जानकारी होता है। गॉट इट। और आपके एनालिसिस में कोई स्पेसिफिक आपने ग्रुप लेवल भी एनालिसिस करा है कि आप बोलो कि ये सेक्शन या ये समुदाय में मुझे ज्यादा माल नरिशमेंट और ज्यादा भुखमरी या ज्यादा दिखा और इस सेक्शन में नहीं दिखा, तो वो ग्रुप वाइज एनालिसिस कुछ बता सकते हो आप? हाँ, तो माल न्यूट्रिशन का तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो रेगुलर इंटरवल्स में निकलता है। सो आई हैव लुक्ड एट द लेटेस्ट राउंड 2019-21 में जो हुआ था सर्वे, और हर राउंड में मोरलेस ट्रेंड्स यही दिखते हैं कि सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन इज अमंग्स द आदिवासी पॉपुलेशन, फॉलोड बाय द दलित्स, एंड द गैप इज क्वाइट हाई। तो दलित आदिवासी में स्टंटिंग आप ले लीजिए, वेस्टिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इज मच हायर देन अमंगस्ट अपर कास्ट हिंदूज पर्टिकुलरली। अनीमिया में, हर चीज में ये अंतर दिखता है। सिमिलरली इवन इफ यू लुक एट इट बाय इकोनॉमिक ग्रुप्स, वेल्थ क्विंटाइल्स होते हैं इसमें, द पुअरेस्ट have much higher levels of stunting, wasting, anemia compared to the richest or the rich groups. तो वो बहुत क्लियरली दिखता है, और ये जमीन पे भी दिखता है। व्हेन वी वर्क ऑन द ग्राउंड, यू सी दैट दलित आदिवासी ग्रुप्स एंड ऑल्सो सर्टन अदर सोशल कैटेगरीज लाइक ओल्ड पीपल, सिंगल विमेन आर ऑल, ये डिजेबल्ड अगर कोई है, इनको भी ज्यादा, because they're marginalized groups, they have less access to both employment and state services. तो इन ग्रुप्स में डेटा भी बहुत क्लियरली दिखाता है कि malnutrition ज्यादा है। गॉट इट। एंड आर देयर एनी प्रोग्राम्स आउट देयर जो मतलब कुछ प्लान, शायद कुछ तो हमारे जो नोटिसेबल होता है कि इंडिया में गरीब और अमीर वाला कैटेगराइजेशन बहुत पॉपुलर है, कि हमने गरीबों को बहुत खाना खिलाया, या वी आर दिस इज द प्रोग्राम फॉर द पुअर, बट वेरी रेयरली वी सी कि देयर इज सम न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोग्राम या फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स कि यार हम आदिवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं या
दलित समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं। आपने कहीं देखा है ऐसा कि इनको टारगेट करते हुए कहीं हो? है मतलब देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक एक ग्रुप होता है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन स्टेट्स में दिखते हैं। देयर आर स्पेशल पैकेजेस फॉर दीज ग्रुप्स। उनको या तो कम दाम में दिया जाता है। राजस्थान में सहरिया ट्राइब्स के लिए एक अलग पैकेज था, जिसमें दाल भी, घी भी, अलग चीजें देते थे। बट देर आर ऑल्सो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स विच आर नेसेसरी फॉर एवरीबडी, जिसमें कुछ एडिशनल इन समुदाय के लिए किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि इट एड्रेसेस द यंग चाइल्ड एंड द मदर, और जी, उस उम्र पे माल न्यूट्रिशन शुरू होती है। उसमें भी जैसे नॉर्म्स हैं कि कितना पॉपुलेशन में आंगनवाड़ी सेंटर खुलेगा। So in a regular area, if you have one Anganwadi center per 800 population, in a tribal area you will have one Anganwadi center for 400 population, क्योंकि वो scattered है और ज्यादा पहुंचे। There are also Supreme Court orders which say कि जब नया आंगनवाड़ी खुलेगा, it should open in the Dalit या आदिवासी hamlet, not in the upper caste area. आंगनवाड़ी वर्कर्स में प्रायोरिटी इनको देना है, ऐसा भी है बहुत जगह। स्कूल के कुक्स में प्रायोरिटी देना है, दलित आदिवासी कुक्स के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बट देर इज अ रिकग्निशन ऑफ कोर्स दैट ये डिफरेंसेस है। और इस एंड ये भी है कि गरीब अमीरी ने कि किसको पीडीएस में राशन कार्ड मिलता है नहीं मिलता है, उसमें भी काफी सारे स्टेट्स में क्राइटेरियन है कि प्रायोरिटी दलित आदिवासी को दिया जाए। करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग दीपा। और एक और चीज़ जो मैंने देखा कि हर स्टेट गवर्नमेंट का और हर पार्टी का अप्रोच इज वेरी डिफरेंट टू हैंडल दिस इशू। एंड ऑब्वियसली देर इज सम थिंकिंग ऑल्सो दैट सेज कि लोगों को कैश डायरेक्टली दे दो, सो दैट दे कैन, उनको गैस पे खर्चा करना हो, हेल्थ पे करना हो, फूड पे करना हो, एजुकेशन पे करना हो, खुद डिसाइड कर ले, rather than you giving this. And then obviously there is a contrast between, I mean, what the BJP led governments would do, the Congress governments would do. uh, what are different ways that you have seen? आपने कौन-कौन से ways analyze करे हैं? How do different governments approach this problem? Is there a standardized way या सबका अलग-अलग है? So, if I can give you a long answer to this question, firstly, we have something called the National Food Security Act, जो 2013 में पास हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दी एनएफएसए आपको ग्रेन्स देना ही है। सो यू हैव टू गिव 5 kgs पर पर्सन, विच कैन बी राइस या व्हीट या मिलेट्स। एंड किस स्टेट में कितने लोगों को वो मिलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला दैट द प्लानिंग कमीशन हैड वर्कड आउट उस समय पर। Overall, 75% of rural and 50% of urban population is supposed to be covered. लेकिन कुछ ज्यादा गरीब राज्यों में वो ज्यादा कवरेज हो जाता है, और कम गरीब राज्यों में कम कवरेज होता है। इसको ही मिला के वो जो 81 करोड़ फिगर हम लोग जो सुनते हैं, दैट कम्स फ्रॉम दिस, कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। द डिबेट ऑन क्या देना चाहिए, अब एक्ट में तो आ गया है राइस, व्हीट या मिलेट्स, बट जब एक्ट पास हो रही थी तब से डिबेट चल रहा था कि ग्रेन देना चाहिए कि कैश देना चाहिए। एंड वी वर आर्ग्यूइंग दैट कैश इज मोर एफिशिएंट, कि आप सीधा बैंक अकाउंट में डाल दोगे तो करप्शन नहीं होगा, और जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होते हैं वो बच जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह के कॉस्ट बच जाएंगे, और लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। There were many who were saying that we were not ready for cash transfers for a number of reasons. पहली बात तो कैश इज नॉट इक्वल टू फूड इन मेनी वेज। एक तो बैंक्स अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, देर आर नो बैंक ब्रांचेस और एटीएम मशीन्स एवरीवेयर। सेकेंडली, कैश हम लोग देखते हैं कि जब भी कैश दिया जाता है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं होता है। जैसे आपको 5 किलो देना है, दाम जो भी है 5 किलो तो मिल रहा है गारंटी। लेकिन कैश क्या होता है, आई गिव यू एन एग्जांपल। कैश प्रोग्राम्स भी तो बहुत हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन एक स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन फॉर ओल्ड एज पेंशन हैज बीन 200 रुपीज फ्रॉम 2009। वो अभी भी 200 रुपीज है। या मेटर्निटी एंटाइटलमेंट है, वो 5000 रुपीज है, जब से शुरू हुआ वही चल रहा है। जननी सुरक्षा योजना है, वो 1400 रुपीज है, 2005 का प्रोग्राम है ये, अभी तक 1400 ही आप दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ 1400 इज वेरी डिफरेंट ना। तो ये है कि जब आप एक मिनिमम गारंटी दे रहे हैं, इफ यू गिविंग इट इन काइंड, एटलीस्ट उसका वैल्यू आपका बचा रहेगा। अनदर रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जब
खाना बांटा जा रहा है, वी हैव टू लुक एट द प्रोड्यूसर एज वेल। मतलब एक बहुत बड़ी चैलेंज है किसी भी सरकार का इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कि हम दो चीजें चाहते हैं एक ही टाइम पे, एंड दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। वन इज वी वांट द फार्मर्स टू गेट अ गुड प्राइस, जो पूरी एमएसपी की लड़ाई हम सुनते हैं। सेम टाइम वी आर सेइंग कि लोग उतना प्राइस दे नहीं पा रहे, right? So you want the farmer to get say 30 rupees a kilo, but you're saying people can't afford more than 5 rupees a kilo. So how do you balance this? If you leave it to the market, one or the other will be a loser. कोई तो So जाएगा। हाँ, तो procurement is a very important function that the government does, कि वो आप MSP से पे खरीद रहे हो किसानों से, तो आप अगर देना बंद कर दोगे ना, अगर पीडीएस बंद हो जाएगा और सिर्फ कैश देंगे, तो सरकार प्रोक्योरमेंट भी बहुत कम कर देगी। अभी उतना प्रोक्योरमेंट करती है जितना जरूरत है पीडीएस के लिए, तो इन इफेक्ट देयर प्रोक्योरमेंट विल रिड्यूस, व्हिच विल बी डिजास्ट्रस फॉर द फार्म सेक्टर एज वेल। सो द पीडीएस प्लेस मल्टीपल रोल्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कैश। दूसरी चीजें हैं जिसमें कैश की जरूरत है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो, मेटर्निटी एंटाइटलमेंट है, विडो पेंशन है, ये सब में आप कैश ट्रांसफर कीजिए, कोई ये नहीं है। फाइनली आई वांट टू से, कोविड के जो 2 साल में अब बहुत सारे स्टडीज निकले हैं, सरकार ने दोनों तरीके के चीजें की थी। इफ यू रिमेम्बर, जो आत्मनिर्भर शुरू में 2020 में जो मेजर्स निकले थे, वन वॉज ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो फ्री में चावल गेहूं बांटना। द अदर वॉज पैसे डाले थे जनधन अकाउंट्स पे। ऑल स्टडीज शो दैट द ग्रेन वॉज मोर इफेक्टिव इन रीचिंग पीपल than the cash. There were many problems. कैश गलत गलत अकाउंट में चला गया या गया नहीं, लोगों को पता नहीं चला, लोग ले नहीं पाए, लेकिन उनको अनाज तो मिल गया। एंड आई थिंक वो रिफ्लेक्टेड है इवन सरकार के इसमें ना, क्योंकि कैश तो वो लोग तभी बंद कर दिए, लेकिन ग्रेन तो कंटिन्यू ही चल रहा है 2 साल से। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑल्सो समवेयर रियलाइज दैट दिस वाज अ मोर इफेक्टिव प्रोग्राम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो आपका आपका एक मैं पॉइंट पकड़ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि जब फार्मर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो टू मेंटेन हिज लाइंस ऑफ प्रोडक्शन दे हैव टू एक्चुअली सेल इट एट 30 रुपीज़ पर केजी। बट जो बायर है वो 30 रुपीज़ पर केजी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो शायद 2 या 5 रुपए या 1 रुपए पर केजी अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए सरकार का एक सेंट्रल रोल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है टू प्रोक्योर एंड वो जो बेसिकली वो जो लॉस है वो सरकार बेयर करे और वो फिर देन गिव इट टू द एंड कंज्यूमर एट अ मिनिमम उसकी इनकम के हिसाब से। वेरी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं कभी हमने सोचा नहीं है इस बारे में जब हम कि फूड सब्सिडी कहते हैं ना, सब्सिडी वही है। हाँ, वो सब्सिडी है कि वो 30 का लेके एमएसपी पे जो प्रोक्योर कर रही है वो सब्सिडी नहीं है। आप अच्छा। पैसे दे रहे हो, आप अनाज खरीद रहे हो, तो उसमें सब्सिडी क्या है? हाँ, हाँ। फिर आप उसको सेल कर रहे हो कम प्राइस में, इसीलिए वो सब्सिडी बन रहा है। और ये बहुत लोग समझते नहीं है मुझे लगता है कि ये एक्चुअली नहीं, सब्सिडाइज़ किधर हो रहा है ये। करेक्ट। तो वो जो ए हाँ 80 करोड़ का फिगर है वो एक बार आप वापस समझाओगे कि वो कैसे आया? बिकॉज़ ये बहुत पॉपुलर इलेक्शन मतलब पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव है ये। हाँ, तो ये अगेन ये 2013 का कानून है ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। 4 साल बहस चली 2009 टू 13, और फिर कंसेंसस यूनानिमसली पास हुआ है ये पार्लियामेंट में। और बहस यही थी कि ठीक है हम कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को दे, हाउ डू वी डिसाइड। तो कानून से पहले भी पीडीएस चलता था, उस समय एपीएल बीपीएल चलता था, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जी। और वो पॉवर्टी लाइन, बहुत लोगों को लगता था कि पॉवर्टी लाइन ही बहुत कम है। जी, हाँ। उस समय पे इट वाज लाइक इन अर्बन एरियाज 30 रुपीज अ डे पर पर्सन। अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। एंड दिस 30 रुपीज इंक्लूडेड योर स्पेंडिंग ऑन रेंट, बस ट्रांसपोर्ट जो भी हो, हेल्थ, एवरीथिंग, जो सारे चीजें आप खर्च करते हैं। तो उस समय पे राइट टू फूड कैंपेन के साथ हम लोगों ने ये कैंपेन किया था, ऐसे विजुअली दिखाने के लिए कि व्हाट इट मीन्स। तो हम 30 रुपए में क्या मिलता है उसका गिफ्ट बॉक्सेस बनाए थे, एंड वी सेंट इट टू प्लानिंग कमीशन, टू मिनिस्टर्स एंड सो ऑन। एंड दैट वुड हैव थिंग्स लाइक एक बस टिकट, आधा केला, इतना सा चावल, और बस शायद थोड़ा सा मसाला आप डाल दो तो 30 रुपए खत्म। कि उतने पे ही कोई जिए, दैट इज तो इम्पॉसिबल, राइट? सो देयर वर मेनी हु आर बीइंग एक्सक्लूडेड। तो वो फाइनली, मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं था, पर कानून में ये हो गया कि ओके वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, वील ट्राई एंड कवर एज मेनी एज पॉसिबल। तो हम रूरल एरियाज में 75% को कवर करेंगे और अर्बन एरियाज में 50% को कवर करेंगे, क्योंकि अर्बन में पॉवर्टी थोड़ा कम होता है।
तो वो 75-50 में फिर ये हुआ कि आप एक उत्तर प्रदेश और एक मान लीजिए केरला या तमिलनाडु तो सेम नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली सम प्लेसेस नीड मोर एंड सम प्लेसेस नीड लेस। तो उसमें एक पॉवर्टी रेशियो लगा के इन लोगों ने डिवाइड किया था। तो से इन बिहार रूरल एरियाज अबाउट 84 या 85% are covered. But in Andhra Pradesh in rural areas about 40% will be covered. पर ये सब 2011 के सेंसस फिगर पे लगा के 81 करोड़ नंबर आया था। तो उस हिसाब से फिर राशन कार्ड्स बटे हैं। So already you can see there are a lot of problems also in this because 2011 से 2022 तक एक तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो अभी अभी उस प्रोपोर्शन में नहीं है जो उस समय था। तो उस समय अगर ओवरऑल 67% प्रोपोर्शन है, अब ओनली 59% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग कवर्ड एंड गवर्नमेंट इज सेइंग सेंसस ही नहीं है तो हम कैसे बढ़ाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिकॉज अगर सेंसस होता तो 10 करोड़ और लोग जुड़ते इसमें जस्ट बाय द एक्ट। सो दैट्स ऑल्सो वन बिग इशू। ऑफ कोर्स द सेकंड इशू 80 करोड़ आपने डिसाइड कर लिया, पर ये 80 करोड़ लोग होंगे क्या, कौन, इनको कैसे खोजे। वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, जैसे तैसे भी उन लोगों ने बांटा है। एक एक बेसिक सवाल मुझे आया था कि अगर वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी हमारी जो आज मार्केट का बेनिफिट लेके खुद अपना खाना अफोर्ड कर सकती है, खुद खा सकती है और उसे किसी भी लेवल की सब्सिडी या स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वो पॉपुलेशन समझना चाहूँ, आउट ऑफ द 120-130 करोड़ दैट वी आर, व्हाट इज़ दैट परसेंटेज मोटा-मोटा? आई नो एग्ज़ैक्ट थोड़ा मुश्किल होगा, वो कितना होगा? सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट दिस। एक तो आई एम स्टार्टिंग विद सेइंग खाना मतलब मैं पूरा पोषण, पोर्शन, न्यूट्रिशियस फूड की बात कर रही न्यूट्रिशियस हूँ। फूड की बात करें, हाँ। There is one other indicator from NSS which tells us that over 80% of the people in this country earn less than 18,000 rupees a month. In my opinion, they need help. That's not enough. 18,000 रुपए क्या होते हैं आज के दिन में, महीने में। आई मीन वी वांट देम टू, हम तो चाहते हैं ना कि लोग अपने बच्चों के शिक्षा पे भी खर्च करें, थोड़ा हेल्थ पे तो होता ही है खर्चा, रेंट पे। अर्बन एरिया में आप हैं तो 3,000 4,000 से कम तो आपको स्लम में भी कमरा नहीं मिलता है आज के दिन में। सो आई वुड से अराउंड 80 वुड स्टिल बी। सो वन ऑफ द वेज टू लुक एट इट वी हैव बीन सेइंग इज, गिवन इतने लो इनकम्स, हम ये हिसाब करने का कोशिश ना करें कि गरीब कितने लोग हैं, हम ये हिसाब लगाएं कि अमीर कितने लोग हैं। करेक्ट, वही। तो अगर देख लें कि कितने लोग टैक्स भरते हैं, कितने लोग अपना ओन हाउस में रहते हैं एक अर्बन एरिया में, या रूरल एरिया में रहते हैं तो पक्का घर 4 कमरे या ज्यादा में कितना लोग रहते हैं, कितनों के पास इरिगेटेड लैंड है 5 एकड़ से ज्यादा। ऐसे लोगों को आप हटा दो, बाकी सबको जरूरत है, और ऐसे लोग 15-20% से ज्यादा है नहीं। 20 भी मतलब टॉप्स होगा, मतलब मैक्स। टॉप है, टॉप हाँ, एग्जैक्टली। बट यू कैन ओनली रिमूव द टॉप, क्योंकि बाकी सब किसी अलग अलग लेवल्स पे गरीब ही हैं। करेक्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ हम एक मॉडर्न शहर में बैठ के जो इंडिया का पर्सपेक्टिव और परसेप्शन बनाते हैं और जो हम परसेप्शन सेल भी करते हैं इंडिया का आजकल, वो, और जब हम रियलिटी देखते हैं वो बहुत हमेशा एक बहुत कंट्रास्टिंग रियलिटी दिखती है। क्योंकि ये पिक्चर इंडिया की। इनइक्वालिटी बहुत है। जी। तो इसलिए मतलब आपको जो देखने का मन है वो दिख जाता है इंडिया में। करेक्ट, कंट्री बहुत बड़े है और इनइक्वालिटी बहुत है। तो आपके सारे ब्रांड्स दिखेंगे, लग्जरी मॉल्स भी दिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है कि वो टॉप 2% भी इन एब्सोल्यूट नंबर्स इज क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट लॉट। हुँ, सो हु विल बाय योर व्हाटएवर लग्जरी ब्रांड्स, बड़े गाड़ियां एंड सो ऑन, वो भी दिख जाएगा। वही दिखने का मन है तो बाकी 80% इनविजिबलाइज्ड है। करेक्ट, हाँ। इसमें आपका कुछ रिसर्च, बेसिकली जो हमारी बात भी हो रही थी कि अ, कुछ आपका रोल ऑफ रिसर्च ये भी रहा है कि ओवरऑल वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पेसिफिकली इस पे, बिकॉज मैटरनिटी टाइम, चाइल्ड टाइम, मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, सो एक जेंडर बेस्ड बहुत ज़्यादा ये एक डिस्पैरिटी होती है। और ऑल्सो ऑन द एक क्वेश्चन ये भी आता है कि
because males could be masculine, उनकी कुछ अलग requirement होगी, but women have their own set of challenges. So if you can throw some gender based analysis, काफी वो that will be very interesting. Yeah. So this also can be looked at so many levels, and it's quite important. So I'll just try and give different things, and we can take it forward. Pehla to outcomes, if you look at. So if you look at anemia, for instance, Correct. over about 56% women in this country are anemic. Oh. आप देखोगे कभी ब्लड डोनेशन कैंप होता है और उसमें ज्यादा लोग आए ना, इफ इट्स अ वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज लेते भी नहीं है खून, क्योंकि द लाइकलीहुड इज दैट दे आर एनीमिक. सो इट इज इजियर टू से कि तुम दो ही मत, क्योंकि हम टेस्ट करें हीमोग्लोबिन का लेवल आएगा तभी हम ले सकते हैं, और हर दूसरी महिला तो अनीमिक है ही. दैट इज द लेवल ऑफ अनीमिया अमंगस्ट वीमेन इन दिस कंट्री. या लो बीएमआई भी देख लें कि जितना वेट होना चाहिए हाइट में, अगेन ओवर 25% ऑफ वीमेन हैव अ लो बीएमआई. तो और बाकी सब एजुकेशन एजुकेशन हर चीज में हमें फर्क दिखता है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, Correct. जो लेस देन 20 अराउंड 20% नाउ ऑफ विमेन आर इन द लेबर फोर्स, बिल्कुल. और उसमें भी 90% इनफॉर्मल सेक्टर में. जी. तो अगेन इट्स द सेम थिंग, कुछ कुछ कोई एक महिला पायलट बन गई, कोई एक सीईओ बन गई का मतलब नहीं है कि पेट्रियार्की खत्म हो गया है. जी. जी. इट इज गुड, कुछ तो निकल रहे हैं, पर जेंडर बेस्ड डिविजन्स हेल्थ में, एजुकेशन में, वर्क में, हर जगह में दिखती है. जी. But these divisions become very central, and they kind of determine health and nutrition outcomes as well, because एक life cycle, एक intergenerational effect भी है women's health का. So if the mother is malnourished and unhealthy, the child is likely to be born malnourished. If that child is a girl and grows up to be an unhealthy, malnourished adolescent and then is married off young, कम उम्र में बच्चा होता है, तो उसका बच्चा फिर से malnourished होता है. तो वो साइकिल अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको महिलाओं को एड्रेस करना ही पड़ेगा. तो वो एक हो गया जस्ट द बायोलॉजिकल फंक्शन दैट वीमेन प्ले. दूसरा ऑल्सो हमारे जैसे समाज में बच्चों का देखभाल करना, घर पे खाना बनाना, ये सब महिला का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो अगर महिला का स्टेटस कम हो, देन यू सी कि ये सब भी इन सब चीजों पर असर पड़ने लगता है. इसीलिए यू हैव दी स्लोगन्स ना कि एक लड़की को पढ़ाओ तो पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो. इसका मतलब क्या है, यही है, दैट्स व्हाट द डेटा आल्सो शोज, बिकॉज द वुमन इज रिस्पॉन्सिबल. ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, होपफुली मेन शुड आल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल, बट currently because the woman is responsible for everything, if she is unpaired, if she doesn't have a decision making say, that has an effect on how healthy children are, how well nourished children are, and how healthy she is herself. हर चीज में ये दिखता है, even in the number of children people have. If the women have a greater decision making say, तो वो 2 बच्चे से ज़्यादा यूजुअली नहीं चाहते हैं. पर अगर उसे पूछा ही नहीं जा रहा है और लड़के के लिए बच्चे किए जा रहे हैं तो 3, 4, 5, 6, उससे वो वुमन का भी हेल्थ इफेक्ट होता है. जो बच्चे बाद बाद में पैदा हो रहे हैं, उनका भी हेल्थ पे असर पड़ता है. So there's so many ways in which gender plays a very important role. And finally, one last role I want to mention is also because women are invisible, women's issues are also invisible. तो चुनाव इन मुद्दों पे नहीं लड़ी जाती है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि महिला तो she will vote along with whatever the family asks her to vote. So you wouldn't come up with issues that matter to her also as a political agenda. बट डू यू थिंक मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर वुमेन को टारगेट करके इन इश्यूज पे फोकस करा जाए तो इट कैन बी पॉलिटिकली प्रूडेंट और या हेल्पफुल हो सकते हैं पॉलिटिकली? एनी थॉट्स देयर? I hope it should be, and in some states it has been, but it takes time also. But थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है. अभी जैसे आप देखिए ये उज्ज्वला स्कीम जो है, जी. everywhere if you look at the big posters and billboards around Ujjwala, you'll have the prime minister and you'll have one woman in the kitchen saying कि देखो इसको मैं बचा रहा हूँ. So obviously वो थोड़ा थोड़ा तो बदलने लगा है. या बिहार वगैरह में जो जीविका साइकिल. करके एक प्रोग्राम है, साइकिल प्रोहिबिशन, all of this is done saying, and where we can understand this is also from states जहाँ पे चीजें ठीक चल रही है हमारे देश में, तो जी. relatively, जैसे तमिलनाडु या केरला या even later आंध्रा. इन स्टेट्स में women and women's issues became political issues much earlier. अर्लियर. हाँ. So you have these kind of statements about women and reducing their burden being made by MG Ramchandran in the 70s 80s. मतलब फिल्में भी ऐसी बनी थी तमिलनाडु में.
या एनटी रामाराव 1980s में, इन लोगों ने विमेन को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा था, रिकॉग्नाइज़ करा। रिकॉग्नाइज किया तो ऐसे प्रोग्राम्स भी आए कि मिड डे मील, जैसे तमिलनाडु में जब मिड डे मील यूनिवर्सलाइज किया गया तब ये भी बोला गया कि मैं आई एम डूइंग दिस टू वाइप द टीयर ऑफ एवरी मदर्स आई, जी, कि उसका बच्चा भूखा ना रहे, उसको सुबह-सुबह उठा के ये ना करना पड़े कि कहाँ से मैं टिफ़िन बनाऊँ इसके लिए और खाना ले आऊँ, इसलिए हम सरकार खिलाएँगे। सो ये हुआ है, और जब भी हुआ है ये मुद्दे आए हैं। ये भी स्टडीज़ है जो दिखाते हैं, जैसे जहाँ पंचायत में वुमेन्स रिजर्वेशन आया, दैट वुमेन सरपंचेस टेक अप मोर ऑफ दीज़ काइंड ऑफ इश्यूज़, कि आंगनवाड़ी है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं वगैरह। So I think it's definitely, I mean, they are 50% of the population. So if you include them in political agenda, बहुत बहुत सारे issues जो रह जाती हैं वो भी आएंगे. बिल्कुल। अ, आपने स्टेट्स की कुछ बात करी, मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा था कि कौन-सी ऐसी स्टेट्स हैं दैट यू वुड से कि अ, यू नो जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रन करे हैं एंड देन व्हिच आर बेसिकली अ केस स्टडी इन द कंट्री? So broadly again outcomes आप देखोगे तो clear एक pattern type से दिखता है. Of course things are changing now also, but broadly southern states have had better outcomes, fertility rates, nutrition, health वगैरह. Within the south also पहले केरला, उसके बाद तमिलनाडु. वेस्टर्न स्टेट्स थोड़े बेटर हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पर वो इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर है देन इन दीज काइंड ऑफ आउटकम्स. और जो पहले बीमारू हम बोलते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अभी भी यूपी और बिहार सबसे नीचे में आते हैं, लोएस्ट में. बट स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वन कैन सी की चीजें बदल रही है वहां पे. But Bihar, UP, Jharkhand, things are still quite, there is a scope for much more improvement. Then of course पूरा नॉर्थ ईस्ट का तो हमारे पास डेटा ही नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में न्यूट्रिशन इज रिलेटिवली बेटर इन सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. दैट्स ऑल्सो टू डू विद देयर डाइट्स, एंड ऑल्सो वहां पे भी मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं और वुमेन्स स्टेटस अलग है. पर ये क्लियरली देर इज अ पैटर्न, जिससे ये भी है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीख भी सकता है. In the case of food and nutrition, Tamil Nadu has widely been recognized as a kind of a good practice, best practice state, and it has been documented. मतलब World Bank से लेके uh, all kinds of international, national have recognized that ये एक state है जहाँ पे बहुत सारी चीजें, food पे बहुत priority दिया गया है, जिससे बहुत सारे, and later now health also, which shows how the state can run effective programs on these. So Tamil Nadu has a large set of programs. जैसे it was one of the first states जिसने ये बीपीएल एपीएल में वो लोग गए ही नहीं. अच्छा, एक बार कोशिश किया, फिर कहे कि ये तो वर्क करता ही नहीं, हम तो यूनिवर्सल देंगे. सो तमिलनाडु में पीडीएस हमेशा यूनिवर्सल रहा है, और उल्टा रहा है कि ये गिव इट अप जो कैंपेन रहा था, वो तमिलनाडु ने एक्चुअली, दैट्स नॉट व्हाट दे कॉल्ड इट, बट दे सेड अगर आप लोगों को अनाज का जरूरत नहीं है, यू कम एंड टेल अस एंड वील गिव यू समथिंग कॉल्ड द शुगर कार्ड, कि आप सिर्फ चीनी लोगे पीडीएस में. एंड यू सी दैट तमिलनाडु का ऑफटेक आप देखो तो जब यूनिवर्सल था तब भी अराउंड 70% लोग ही लेते थे. So those who are rich won't go and queue up and take it in the shop. Then they also have a wider basket of commodities that they give through the PDS. It's not just चावल, गेहूं, दाल भी देते हैं, तेल भी देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं पर सब्सिडाइज प्राइसेस में देते हैं, एक पूरा मसाला पैकेट देते हैं, चाय पत्ती देते हैं, साबुन, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे प्रोवाइड थ्रू द पीडीएस, एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव पीडीएस. मतलब लीकेज भी बहुत कम है वहां पे रिलेटिवली आप अगर देखो तो. But it's not just PDS, it's other things also. So even cooked meals in schools. Tamil Nadu was one of the first states to universalize कि आपको गरम पका हुआ खाना स्कूल में मिलेगा. अंडा, स्कूल मील के साथ अंडा देना वहीं पे शुरू हुआ. वहां पे अब हफ्ते में 5 दिन बच्चों को अंडा मिलता है. टू द इफेक्ट कि ऐसे ही बॉइल्ड अंडा नहीं, एक दिन बॉइल्ड अंडा मिलता है, एक दिन कुछ एग फ्राइड राइस मिलता है, एक दिन मतलब इतने डिफरेंट एग करी मिलता है एक दिन. अभी जो करंट सरकार आई है, देव ऑल्सो स्टार्टेड अ ब्रेकफास्ट स्कीम, बिकॉज इट वॉज फाउंड एंड इट्स सीन एवरीवेयर इन द कंट्री कि जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है, ऑफन दैट इज द फर्स्ट मील फॉर अ चाइल्ड, एंड दैट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट. तो अभी इन लोगों ने किया कि स्कूल में आते ही इनको थोड़ा सा कुछ मिलेगा, उपमा, चना, सेमिया, इस टाइप से, और फिर लंच भी मिलता है. They also had a community kitchen program in urban areas कि
महिलाएं चलाती है। इट्स लाइक अ कैंटीन, कोई भी जाके खा सकता है। इट्स फिक्स प्राइस, 5 रुपए प्लेट में आपको सांभर चावल मिलेगा, एक इडली 1 रुपए का मिलेगा, इस टाइप का एक मेनू बना हुआ है। So I say I can keep going on. There are these multiple sets of policies that they did where they thought of every group and how best to address them, and it works quite well. आई थिंक वो भी उन्होंने एक शुरू करा था ना कुछ अम्मास किचन या समथिंग लाइक दैट वेयर दे वुड हाँ, जा जो कम्युनिटी किचन कैंटीन है उसको जी हाँ। अम्माज कैंटीन कहते हैं। जो यही है, तो सिंपल चीज था कि अर्बन एरिया में बहुत सारे माइग्रेंट भी पॉपुलेशन होते हैं, तो उनको ये रॉ ग्रेन दे के उतना फायदा नहीं है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी आप देखो, सिंगल मैन बहुत सारे माइग्रेट होते हैं। हाँ, हाँ, बहुत। उनको आप 35 किलो चावल पकड़ा दो, वो करेगा क्या? वो रहते भी है कहीं सड़क पे, उनको कुकिंग का भी फैसिलिटी नहीं होता है। तो दे सेड कि व्हाट इज बेटर फॉर द अर्बन माइग्रेंट पॉपुलेशन इज टू एक्चुअली हैव कुक्ड मील्स एट अ अफोर्डेबल प्राइस, एंड दे मोस्टली ईट आउट बट दे आर ईटिंग अनहेल्दी। आप कोई वो ये पराठे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं या ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, इससे अच्छा आप एक हेल्दी मील दीजिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, देन पीपल विल बाय दैट। सो दे जस्ट सेट अप दीज कैंटीन्स एट प्लेसेस वेर यू विल फाइंड सच पीपल। तो रेलवे स्टेशन के पास, कहीं कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया तो वहां पे, बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर, ताकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थी फूड मिले। बिकॉज इफ वी थिंक अबाउट इट, इन मेनी ऑफ आवर अर्बन सेंटर्स हेल्दी फूड कम दाम में मिलना बहुत मुश्किल है, कचरा मिलता है कम दाम में। जैसे अभी, जिससे एक दूसरा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी शुरू हो रहा है। लाइक इन दिल्ली slums फॉर इंस्टेंस, यू ऑफन फाइंड कि महिलाएं काम करती हैं, 3-4 घरों में काम करती हैं, उनके पास समय नहीं है खाना बनाने के लिए। तो वो 5 रुपए में मैगी का पैकेट आ जाता है, लेकिन 5 रुपए में आपको एक सेब नहीं मिलेगा, या चिप्स कुरकुरे, ये सब तो 5 रुपए में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सो देन चिल्ड्रन आर ईटिंग अ लॉट ऑफ दैट जंक ऑल्सो। तो द अम्मा कैंटीन काइंड ऑफ प्रोग्राम वाज टू काइंड ऑफ अवॉइड दैट, कि उतने ही दाम में एक हेल्दी मील भी मिल रहा है। तो मैंने देखा है जैसे मद्रास में कि बहुत सारे बच्चे भी आके खाते हैं यहाँ अम्मा कैंटीन। स्कूल जाते जाते वो 5 रुपए, पहले जिससे वो चिप्स खरीद के खाते थे, अब वो 5 रुपए में इडली खा के जा रहा है स्कूल। मच बेटर। हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग। फूड पे हमने काफ़ी चर्चा कर ली, एक बार अब थोड़ा-सा लेट्स मूव टू पब्लिक हेल्थ व्हिच इज़ ऑल्सो आपका काफ़ी पॉलिसी का काम रहा है इसमें। एंड पब्लिक हेल्थ का इट्स अगेन सब इंटर रिलेटेड है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड ये सब आर्गुमेंट मोर और लेस इसमें भी आई एम श्योर सिमिलर ही हैं और सिमिलर ही होंगे। बट व्हाट इज़ द फंडामेंटली द बिगेस्ट आर्गुमेंट और द बैटल दैट इंडिया इज़ फाइटिंग एज़ पर यू इन पब्लिक हेल्थ? Okay, two things in public health again, which is kind of like you said, it is similar to food also. First is, as an economist, हेल्थ में मार्केट फेलियर्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर पूरा, अगर मार्केट पे आप छोड़ दो, तो हेल्थ में जो डिजायरेबल आउटकम्स है वो नहीं मिलते हैं। वन सिंपल एग्जाम्पल वुड बी से इम्यूनाइजेशन, कि आप अगर किसी चीज का टीका लो, उससे सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। या एंड अगर आप टीका ले लें लेकिन और कोई ना ले, तब आपको भी फायदा नहीं होगा। राइट, सो वो अगर होगा कि आपको 1,000 रुपए दे के लेना है, तो बहुत लोग नहीं लेंगे, आप जितना भी समझो कुछ भी करो। सो यू नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी टू सॉर्ट ऑफ इंटरवीन। सो लॉट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ कम्स अंडर दिस। एंड द अदर इज एक राइट्स वाला मुद्दा भी है अगेन, दैट यू बेसिक principle that nobody should die or suffer from a disease which has a cure only because they don't have the ability to pay. दिस इज अ प्रिंसिपल इन हेल्थ, कि अगर उस चीज की दवाई है उस बीमारी की, लेकिन आपको दवाई इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उसको खरीद नहीं पा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी सभ्य समाज। तो इसमें फिर से अगर आप मार्केट पे छोड़ो तो वो ही होगा, बिकॉज दैट इज द लॉजिक ऑफ द मार्केट। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चलाएगा तभी जब वो प्रॉफिट बना पाएगा, और प्रॉफिट अगर उसको बनाना है तो बहुत लोग होंगे जो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और कुछ चीजें डायरेक्टली इट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ आउटकम्स either. So again, there is no country, no single country in this world where the government does not spend on healthcare. तो दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड। आप वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी को भी ले लो, सब कहते हैं कि हेल्थ पे सरकार को खर्च करने की तो जरूरत है।
दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग. डिबेट आ जाती है कि कितना खर्च करना है और कैसे खर्च करना है. तो कितना में भी अब एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल है कि 3% ऑफ जीडीपी is what the government spending on health should be. In our country, it has increased in recent years, but uske baad bhi it's only 1.2% of GDP. So I think one big gap in our health system is the underfunding, jiske chalte we don't have enough human resources in health, we don't have enough hospitals. And again, when I say we don't have enough hospitals, uska jawab ye nahi hai ki Delhi mein 2 aur hospital banaye. That's not the thing. It's about every block having a PHC, every district having a district hospital, जो पूरा equipped हो वगैरह वगैरह, जो वो नहीं है. दूसरा है कि health is much beyond hospitals and medicines. It's about what is called social determinants. तो पोषण का तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है. But it's about access, it's about sanitation, it's about a clean environment, clean drinking water. ये सब भी health में आता है. Pollution, है. तो इंडिया में हेल्थ का बहुत एक क्यूरेटिव अप्रोच रहा है कि बीमारी हो जाए तो तब हम दवा देंगे, लेकिन बीमारी ना हो वो सब हेल्थ में नहीं देखा गया है सो फार. सो यू नीड टू हैव पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ इज बियॉन्ड क्योरिंग डिजीजेस. इट्स अबाउट हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन. तो आजकल दैट वुड ऑल्सो इंक्लूड like avoiding diabetes, hypertension, so avoiding stress, having spaces for exercise, all this would come under health. We are doing very little, and we are in the ranking by percentage spending on GDP. India is 5th or 6th from the bottom on health, even बिल्कुल. post COVID. ये हमेशा एक आर्गुमेंट रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल तो कोई नहीं जाता है, कोई क्यों जाएगा सरकारी हॉस्पिटल, इतनी खराब सिचुएशन रहती है. तो हेल्थ पे भी जब स्पेंडिंग की बात आती है तो मतलब क्या क्या मॉडल विल वर्क? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट. क्या एंड इज इट अ मॉडल, यू नो, कि हम सरकारी हॉस्पिटल बनाए या आयुष्मान भारत टाइप का मॉडल वेयर वी गिव देम इंश्योरेंस, या व्हाट एल्स? बिकॉज इवन आई मीन मैं कुछ 2-3 बार इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ इस पॉडकास्ट पे, एंड हमेशा ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलते आए हैं. कोई कोहेरेंट सवाल मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन पर हम कहीं पहुंच नहीं पाए इस पे. तो I'll start off with saying my position on this is that सरकार को सरकारी हॉस्पिटल चलाना चाहिए. And I'll tell you why. So if we start, what is the alternative? Alternative is to have this insurance kind of करेक्ट. program, है ना? Insurance जिन देशों में चलता है, large part of that insurance comes from your employment. कि आपके जो घर भी देता है पे आपको. पैकेज है, एम्प्लॉयर उसमें इंश्योरेंस इंक्लूड करते हैं. वो तो हमारे यहाँ इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ 70-80% लोग ऐसे काम में काम करते हैं जिसमें एम्प्लॉयर को उन्हें समझ नहीं आता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बेसिकली. पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो वो तो नहीं हो पाएगा. ऑल्दो एक ईएसआई स्कीम है, वो थोड़ा बहुत ठीक चलता है. सो that kind of insurance is not possible. What we are trying out is what is called publicly financed health insurance. Basically, सरकार insurance खरीदती है, not the employer. कि the government will pay the premium and it will cover people, which is what this Ayushman Bharat जन आरोग्य योजना है. तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है. पहला प्रॉब्लम है, जैसे जो मैंने कहा, कि हेल्थ की समझ ही बहुत नैरो है. क्योंकि ये जन आरोग्य योजना में क्या है कि आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है, सो इफ यू गो एंड यू आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, आप इन पेशेंट बनेंगे तभी आपको वो इंश्योरेंस मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट इवन द प्राइवेट इंश्योरेंस इन इंडिया इज. बट इफ यू लुक एट द आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, you find that 67% of the out of pocket expenditure is on outpatient. आपको कोई बीमारी हो गई, आप गए, वो लिख के देगा आपको, ये टेस्ट कराओ, ये वो टेस्ट कराओ, ये दवाइयाँ लिख के देगा आपको, जाके वो खरीदना है. इस पे लोग ज्यादा खर्च करते हैं. ये कवर नहीं होगा आयुष्मान भारत से. तो अगर आपको पीएमजेएवाई में आपको कार्ड मिल भी गया, तो आपको इंतजार करना है को आपको ऐसा बीमारी हो जाए जिसमें जाके आप एडमिट हो जाओ, तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा. बट अदरवाइज योर रेगुलर हेल्थ स्पेंडिंग इज नॉट टेकन केयर ऑफ, which again at an overall macro level is not a good thing, because आप प्राइमरी हेल्थ अगर नहीं है, सेकेंडरी हेल्थ नहीं है, तो प्रेशर ऑन टर्शरी हेल्थ विल इंक्रीज, which is too expensive. जो चीज कम पैसे में
इजीली रिजॉल्व हो जाता, वो उस समय में क्योर नहीं हो रहा है तो वो बीमारी बढ़ती जाती है, फिर आपको जाके इनपेशेंट बनना पड़ता है, तब जाके खर्चा भी ज्यादा, सरकार के लिए भी खर्चा ज्यादा, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि ठीक है मुझे कुछ फ्री में मिल गया, नहीं मिल गया। लेकिन वहां तक जाने का जरूरत था ही नहीं। तो पहला तो चीज है कि कवरेज में ही प्रॉब्लम है कि ओवर 60% ऑफ जो खर्चा है दैट इंश्योरेंस स्कीम्स डोंट रियली कवर, एंड दे डोंट रिड्यूस द हेल्थ बर्डन ऑफ द नेशन, द डिजीज बर्डन, बिकॉज जो जहां पे इंटरवीन करना है तब नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि एक सिस्टम जहां पे आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इज नॉट वेल रेगुलेटेड, और रेगुलेट करने का हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि पैसे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पब्लिक किटी टू द प्राइवेट किटी ना फाइनली, जी। कि आप ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स पे खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को आप पैसा दे रहे हैं ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए, वगैरह वगैरह। पर वो पैसे अगर आप खुद खर्च करते तो कम पैसा में वो सब आप कर पाते। बिकॉज़ वो तो ज़्यादा ही डिमांड चार्ज करेगा ना। वो तो ज्यादा ही चार्ज करेगा, वो तो हुँ, अग्री नहीं कर रहा है कम में करने के लिए। पर करेक्ट। आप लोग करते तो वो कम में भी करते, एंड यू वुड हैव अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम कि अभी आपके पास इंश्योरेंस हो भी, आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, उसके लिए कहाँ जाए आपको नहीं पता, यू स्टिल हैव टू गो टू सम फेलो इन सम डिस्पेंसरी, पे सम 100 रुपीज, एंड वो आपको क्या एंटीबायोटिक दे रहा है, क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सब आपको नहीं पता है इंश्योरेंस लेकर भी। यू नीड टू हैव अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम कि प्राइमरी कौन है, आप जिसको अपने घर के पास किसको रीच आउट कर सकते हो। दैट इज अ बिग क्राइसिस इन इंडिया, वो तो है नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, कि अभी ठीक है टॉयलेट तो बन रहे हैं, लेकिन टॉयलेट के लिए सिर्फ टॉयलेट बनने से नहीं होगा, पूरा सुएज सिस्टम होना होगा, वाटर सप्लाई होना होगा, तभी तो वो टॉयलेट्स लोग यूज करेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स बनने पड़ेंगे। ऑल ऑफ दिस वी आर स्टिल लैकिंग। सो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला मॉडल है, इट्स एन ईजी मॉडल क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, कुछ प्राइवेट लोगों को पैसा देना है, लेकिन वो इक्विटेबल नहीं है। और ये भी देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत रिमोट एरियाज में नहीं खुलते हैं। नहीं खुलते हैं। हाँ, तो हो सकता है कोई गांव में दूर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया में किसी के पास इंश्योरेंस है, लेकिन उसको वो यूज करने के लिए जाना होगा रायपुर में। वो नहीं तो होने वाला। हो सकता है आपका इलाज फ्री में हो जाए, लेकिन आपके साथ एक परिवार का मेंबर जाएगा, वो कहीं रुकेगा, वो भी खाना खाएगा, आने जाने का खर्चा होगा। आपके साथ जो गया वो भी काम पे नहीं जा रहा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी है, वो भी लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी उतना नहीं घटा है। गॉट इट। बट दीपक एक बात बताओ कि हाउ कैन वी मेक आवर हॉस्पिटल्स रन बेटर, स्टेट हॉस्पिटल्स को हम बेटर कैसे करें? क्योंकि वो तो सिचुएशन तो आई मीन इट्स ग्रिम देयर। It is grim. And there are two things. One is it is grim also because it's under resourced and understaffed. And we, like, if you go to a Tamil Nadu primary health center, you will see that it's well painted. वहां पे एक डॉक्टर आपको मिलेगा जिस टाइम पे आप जाओगे, आपका जब बेसिक बीमारी है उसका वो दवाई वो डॉक्टर दे पाएगा। वहां पे एक फार्मासिस्ट रहेगा, एक लैब टेक्नीशियन रहेगा। आप अगर ओवरऑल इंडिया में देखें, वैकेंसीज बहुत हाई हैं, कुछ कुछ चीजों में लाइक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंड ऑल, 50% से ज्यादा जो सरकारी आंकड़ों से जरूरत है लोग सैंक्शन पोजिशन है वो वेकेंट है। जी। राइट, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में जाके आपको अगर सर्विस नहीं मिल रहा है तो लोग जाना बंद कर देंगे, उससे वो बिल्डिंग भी बेकार बनने लग जाता है। एंड देन द डॉक्टर्स ऑल्सो से कि यहाँ पे क्या फायदा, मेरे पास ना दवाई है ना कुछ है, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, फिर इन्हीं लोगों को प्राइवेट में भी बुलाने लग जाते हैं। तो एक तो पहले रिसोर्स उसको करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि हैविंग सिस्टम्स वेयर द कम्युनिटी कैन मॉनिटर, लाइक यू हैव द पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पीएचसी, और बोलो कि डॉक्टर रोज आ रहा है कि नहीं वो ही देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी बैठ के तो मॉनिटर नहीं कर पाएगा हर पीएचसी को। तो हर लेवल पे किस तरह से यू कैन हैव द बेनिफिशियरीज और द कम्युनिटी ऑल्सो पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम। And then there are many details into training of the health workers and so on, payment, आजकल सब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो गए हैं, कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। या रिमोट एरिया में आपने मान लीजिए एक नर्स को आपने अपॉइंट किया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग हर टू बी देयर फॉर 24 आवर्स, क्योंकि डिलीवरी केस तो किसी भी टाइम पे आ सकता है, लेकिन उसको रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है, करेक्ट। तो वो रहेगी। You have to make those facilities available, and all of these, many of these are things that a state like Tamil Nadu has done. And also having
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जैसे जो आशा हम लोग कहते हैं, छत्तीसगढ़ में मितानिन उनका नाम होता है, बट पेइंग देम वेल। अभी उनको 1,000 रुपए आप लोग दे रहे हो, उनको मंथ थोड़ा का। ठीक ठाक पैसा दे, मंथ का, उनको थोड़ा ठीक ठाक पैसा देके अच्छे से ट्रेन करके रहेंगे तो छोटे छोटे चीजें जो गांव में ही रिजॉल्व हो सकती हैं उसको गांव में ही होना चाहिए। दैट्स हाउ यू बिल्ड एन एफिशिएंट हेल्थ सिस्टम। कि पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड करके एक स्लोगन निकला था, कि लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके बॉडीज के साथ क्या हो रहा है। और बहुत बेसिक चीजें, जैसे डायरिया है, कि आपको ओआरएस पैकेट का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉल खरीदने का जरूरत नहीं है, आप पानी में चीनी नमक भी घोल के आप पी लो, वही असर पड़ेगा। बट जस्ट हैविंग पीपल टू टेल यू दैट, हैविंग दो सिस्टम्स की बहुत सारी चीजें लोकली ही फिर रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हमने प्रायोरिटी ही नहीं दिया है उस तरह के प्राइमरी हेल्थ केयर पे, which is why this problem, which is why I'm saying कि we should not start at the hospitals. We have to start at the individuals down in the village, in the slum, and their daily health issues. वो आप देख लोगे तो burden on big hospitals itself will go down. गॉट इट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी आंसर दिया। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि डॉक्टर अमित गुप्ता वाज़ ऑन माय पॉडकास्ट। वो ऑक्सफोर्ड में नवजात शिशु के वो हैं, पे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि क्यों यूके का हेल्थ सिस्टम क्यों चल पा रहा था, बिकॉज़ देयर इज़ एनएचएस। वो एक सेपरेट Correct. बॉडी है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, funded by government है, but it's a proper well regulated body that makes hospitals, that hires doctors, and that does all the research. So the UK government job is to fund NHS, Correct. but यहाँ पे क्या होता है कि the hospital is directly literally built from the state itself. तो वहाँ पे there is obviously फिर ये जो issues आते हैं कि मतलब हायरिंग वाले इश्यूज है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज़ देयर इज नो प्रोफेशनल बॉडी ओवरसीइंग इट, सो इट एक्ट्स हाँ, लाइक अ प्राइवेट बॉडी। so करेक्ट। you can think of a governance mechanism, जैसे हमारे यहाँ भी नेशनल हेल्थ मिशन तो शुरू हुआ है, जिससे काफी कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ। जी। एंड यू हैव द नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर जो उसको सपोर्ट करता है टेक्निकली। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, जिसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, कि हम 3-4 मॉडल एक बार कर रहे हैं। हम ये मिशन भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट भी कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक विजन नहीं है हेल्थ सिस्टम का। तो बिल्कुल। क्या चाहते हो आप? इंश्योरेंस चाहते हो कि आप इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हो? किसी एक पे फोकस करो ना, और उसको अच्छे से करो। दैट इज समथिंग वी नॉट डू। यूके में तो ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का झंझट ही नहीं है। जो बीमार पड़े आप एनएचएस के हॉस्पिटल में जाओ। बिल्कुल। क्वीन भी उसी में गई, और जो होमलेस पर्सन है वो भी एनएचएस में ही जाएगा। करेक्ट। दूसरा ये भी है कि रनिंग एन हॉस्पिटल इज जनरली वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो आई थिंक स्टेट के पास अभी रिसोर्सेज भी शायद इतनी नहीं है, दैट आई फील कि शायद क्योंकि इकोनॉमिकली अभी स्टेट ब्लीड करता है ज्यादा, तो मे बी तो फ्रॉम उसमें टैक्सेशन पॉइंट। सी, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी आप देख लो ना, तो हम कम खर्च कर रहे हैं एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मतलब हम अफगानिस्तान जितना खर्च कर रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हाउ कैन यू बी स्पेंडिंग सो लो, सेंटर एंड स्टेट्स टुगेदर? दैट इज अ, एक तो प्रायोरिटी तो, वो मतलब पहले उतना तो खर्च कर ले एंड देन से कि पैसे नहीं है। करेक्ट। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी और दिल्ली, ये कुछ पार्टीज ने ये इस पे थोड़ा सा एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करा है, हॉस्पिटल्स एंड ऑल ऑफ दैट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लोगों ने कभी वो हॉस्पिटल्स विजिट नहीं करे, तो पता नहीं है कि कितना सही है, बट यू बीइंग अ रिसर्चर, हैव यू विटनेस्ड their model working? Have you seen something around it? Do you think it is effective? Do you think it's working? So in Delhi, some things are working, in fact, from what they did. So firstly, again, it's not just the hospital. They started with the mohalla clinic. Mohalla clinic also. हाँ. जो मैं बार बार बोली, you have to go down to the mohalla, right? So mohalla clinic, I think, is this idea. It's a very कि आप हर मोहल्ला में क्लिनिक होगा, फ्री है, फ्री मेडिसिन है। एंड लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनका जो भी प्लान था कितने मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, वो खुल नहीं पाए कभी भी, बिकॉज ऑफ द होल दिल्ली गवर्नमेंट एलजी वाले मुद्दे। बट आई हैव विजिटेड मोहल्ला क्लिनिक्स वेयर दे आर, एंड दे वेरी पॉपुलर।
वो 8 से 2 बजे खुलते हैं, आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर रहेगा, आपको बेसिक इस टाइप के सर्दी, ज़ुकाम, सिर दर्द टाइप चीज़ या बेसिक फर्स्ट एड वो तुरंत वहाँ पे कर देता है। एट बेसिक आपको अगर दवाई-ववाई दिया जा रहा है तो ₹2 ₹5 कुछ चार्ज होता है। इट्स रनिंग वेरी वेल। तो जिनको इवन जैसे एक छोटा फर्स्ट एड के लिए जिसको पहले जाना पड़ता था कोई आरएमएल हॉस्पिटल में, उ हाँ, हाँ। उसका काम अब बहुत फट हो मोहल्ला गया। क्लिनिक हाँ। हो जा रहा है घर के पास। देन इन द हॉस्पिटल्स ऑल्सो वेरेवर जो हॉस्पिटल्स डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है जहाँ पे ये फ्री डायग्नोस्टिक्स वगैरह शुरू किए हैं, दे आर वर्किंग। आई नो ऑफ पीपल हु हैव गॉन देयर, प्रेगनेंसीज जो पूरा फ्री में हो गया, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड एवरीथिंग टुगेदर, बिल्कुल चल रहा है। बट स्केल उतना नहीं है जितना जरूरत है, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिल्लीज यूनिक सिचुएशन कि दिल्ली इज गवर्न्ड बाय द स्टेट, द सेंटर एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑल टुगेदर, and so far there has been no convergence amongst these three bodies and their interventions. That has been an issue in Delhi. नहीं तो वो लोग और भी रात स्केल में कर पाते हैं। बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई अभी हेल्थ में भी क्या सदर्न स्टेट्स आर बीटिंग द नॉर्थ स्टेट्स? हेल्थ आउटकम्स में तो मच मच अहेड। हेल्थ इंटरवेंशंस में भी अगेन केरला ऑलवेज डिड, लाइक देयर इज दिस फेमस स्टोरी फ्रॉम केरला कि एक महिला गई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपना डिलीवरी के लिए, उसको लेके गए थे और वहां पे डॉक्टर नहीं था। तो वो जो लोग थे साथ में, दे फाउंड आउट कि डॉक्टर फिल्म देख रहा था सिनेमा हॉल में। तो लोग जाके उसको पकड़ के ले आए सिनेमा हॉल से और वो आके डिलीवरी किया। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट देयर इज। मतलब दे डिडंट से चलो हम प्राइवेट में चले जाएंगे, उसको बुला के वो लोग करवा लिए थे। या जैसे तमिलनाडु में भी बहुत एफर्ट था प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि आप जितना भी गरीब हो, जब आप बीमार हो, व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ एंड योर बॉडी, नो यू डोंट वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर यू फील लाइक यहाँ पे मेरी ठीक से ध्यान नहीं रखी जाएगी। तो यू विल टेक अ लोन, आप कुछ भी करोगे, कहीं से पैसा ले आओगे और ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे लगेगा कि ठीक है, नहीं यहाँ तो मेरी आए। केयर होगी। तो इवन टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, तो तमिलनाडु ने कहा कि पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने पीएचसी को अट्रैक्टिव बनाएंगे। जी। तो जैसे इन लोगों ने रंग बिरंगे कलर में बिल्डिंग पेंट किया, इट वॉज नॉट द डल सफेद बिकमिंग ब्राउन। सो तमिलनाडु में अभी आप लोग जाओगे तो यू विल सी ऑरेंज, ब्लू, लाइक येलो, ब्राइट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विद कुछ पेड़ लगे हुए हैं सामने। डॉक्टर वहां पे रहता है, क्यू बना रहता है, कोई है जो उस क्यू में खड़ा कर रहा है लोगों को, दवाइयां आपको मिल रही है। उससे शिफ्ट हुई है। इनफैक्ट तमिलनाडु का डेटा आप अगर देखो तो यू सी दैट द प्रपोर्शन दैट वाज गोइंग टू पब्लिक हैज इंक्रीज्ड आफ्टर दे स्टार्टेड दीज रिफॉर्म्स। तो ये भी दिखता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ इज अनदर स्टेट जहाँ पे काफी हेल्थ रिफॉर्म्स हो रहा है, जहाँ पे सरकार कोशिश करती है थोड़ा गुड क्वालिटी सर्विसेज देने लगती हैं तो लोग आराम से जाते हैं। लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि हमें प्राइवेट में ही जाना है। लोगों का है कि हमें वहां जाना है जहाँ पे हमें इज्जत मिलेगी और थोड़ा ठीक केयर मिलेगी। अगर सरकार में वो मिलने लगे तो लोग चलते हैं वहां पे भी। इट इज जस्ट अबाउट एक्चुअली रिस्पेक्टिंग द पेशेंट अल्टीमेटली एट ऑल लेवल्स। लाइक मैं बहुत साल पहले मैं आंध्रा, अब वो तेलंगाना हो गया, जहाँ पे काम करती थी। वन ऑफ द इश्यूज वाज बजट में, सरकारी पीएचसी में बजट नहीं होता था कर्टन के लिए, ये बेडशीट बदलने के लिए बेड पे। और इतना गंदा, मतलब जितना भी गरीब हो ना, दिस बेसिक रेस्पेक्ट हैज टू बी गिवन। पर किसी ने सोचा ही नहीं बजट लाइन में ये भी होना चाहिए कि कौन धोएगा वो बेडशीट, और बेडशीट कितने साल में एक बार बदलेंगे। दीज आर ऑल्सो थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट विच यू वुड इफ यू हैड रिस्पेक्ट फॉर दैट पेशेंट हु इज कमिंग टू योर हॉस्पिटल। बट हियर बिकॉज यू थिंक ये तो कोई गरीब आदमी आ रहा है, इसको तो कुछ भी चलेगा, तो वो सर्विस भी उसी क्वालिटी की हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। एंड इंटरनेशनली व्हिच व्हिच कंट्री यू वुड से कि इज़ अ मॉडल फॉर अस, जो हम जिनसे सीख सकते हैं? So for us, of course, like you mentioned the NHS in UK and so on, but ठीक है, one can say those are advanced countries and we should look at more countries around our level. So Thailand recently, पिछले 15 साल में थाईलैंड में बहुत सारे हेल्थ रिफॉर्म्स हुए हैं where again they worked through this system. यूनिवर्सल कवरेज है प्राइमरी हेल्थ से, लगकर they have built it and it's been seen globally as a great model. Brazil had a very good model जब लूला प्रीवियस, जब लूला का टर्म था, एंड नाउ लूला इज बैक।
So Brazil will probably build on that. Cuba has an excellent health system, पर क्यूबा इज अ सोशलिस्ट कंट्री, तो हम सीधा उसको उठा के तो नहीं कॉपी कर सकते हैं. बट इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल अगेन ऑफ अ पुअर कंट्री और नॉट अ वेरी रिच कंट्री विच हैज बिल्ट अ हेल्थ सिस्टम, इतना कि जब इबोला हुआ था अफ्रीका में, क्यूबा से डॉक्टर्स गए थे, because they had the well trained doctors who they were able to send. They have come up with a system जो अपनी दवाइयाँ वो लोग खुद बनाते हैं, मेडिकल एजुकेशन सो ऑन, एंड रिमोट कहीं पे भी गांव में आपको हेल्थ वर्कर पहुंच जाएगा और आपको हेल्थ मिलेगा. बट क्लोजेस्ट टू होम थाईलैंड is the model we should look at. गॉट इट। हमने काफ़ी अच्छा ग्राउंड कवर करा दीपा, बस आखिरी के 1-2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये है कि हाउ डज़ दीज़ थिंग्स फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ प्लेज़ आउट इन इलेक्शंस? और ये कितना ज़्यादा मतलब वी सी पीपल टॉकिंग अबाउट इट इन इलेक्शंस बट वी रियली डोंट नो कि इसमें कितना इम्पैक्ट आता है। बट व्हाट इज़ योर सेंस? आपका एनालिसिस या सेंस क्या है कि how much of these role, food, nutrition and health, how much they play a role in election? So here I have a bit of a cynical view. Of course, it's different in different states, but overall, I don't think it plays as much of a role it should in elections in our country. जैसे बहुत बाकी देशों में देखा जाता है कि ये सेंट्रल इश्यूज बनते हैं. यूके में एनएचएस में रिफॉर्म्स इज एन इलेक्शन एजेंडा, यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इलेक्शन एजेंडा. यहाँ पे उतना नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ आइडेंटिटी बेस्ड कैंपेनिंग भी बहुत चलती है. बट कुछ कुछ चीजें फिर बन जाती हैं, जैसे अभी, बट that is not equal to the sector becoming important, but जैसे PDS is becoming an election issue. You can see that. As a result of which, that's how I would analyze it, that हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ रेवड़ी के खिलाफ इतना बोलते हैं. I don't like the use of the word रेवड़ी, but that's been used. And then कल कैबिनेट का डिसीजन आया है कि आप जो फूड ग्रेन देते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जो 3 रुपए में देते थे, वो आप फ्री में देंगे. सो ऑब्वियसली दैट इज पॉलिटिकल, राइट? आप क्यों कर रहे हैं? कहीं पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अब एक पॉपुलर स्कीम है और ये हम अगर विड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा. So that is a way in which, I mean, and that's the only way in which voters put pressure. I wish issues, broader issues like providing health infrastructure, providing schools, ये election मुद्दे नहीं बने हैं. Something like PDS, which is a direct हाथ में आपके फूड ग्रेन आ रहे हैं। अनाज मिल रहे हैं, तो वो लोगों को भी समझ आ रही है और वो डिमांड कर रहे हैं. पर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. ऑल्सो लुक एट कितने अस्पताल बन रहे हैं, कितने स्कूल बन रहे हैं, स्कूल में कितने ब्लैक बोर्ड हैं. ये चीजें इलेक्शन मुद्दे नहीं है हमारे यहाँ एज येट. I do think that if more women participate in politics, that will be one way in which it will happen. But yeah, अभी तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है. वही हमारे अंडा बना हुआ है इलेक्शन का मुद्दा, एंड हम वी कुड नॉट डिस्कस अ लॉट ऑन एग, स्पेशली मेरी होम स्टेट Correct. एमपी में तो मतलब बैंड है एग। इसका क्या मतलब लास्टली इसका क्या इम्पैक्ट रहा ओवरऑल? Yeah, I think unfortunately Anda is a good example to what I was saying also. अंडा इलेक्शन का मुद्दा बना नॉट कि पोषण के लिए अंडा अच्छा है कि नहीं, इसलिए बना कि हिंदू अपर कास्ट बच्चों के सामने अंडे खा सकते हो कि नहीं. राइट, इट बिकेम अ होल, इट्स बेसिकली अ कास्ट इश्यू ना, कि कुछ ऐसे कास्ट है जो अंडा नहीं खाते हैं. और ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा है कि सबको अंडा खाना है. वो अंडा वाला पॉलिसी यही है कि जो अंडा खाता है उसको अंडा स्कूल में भी दिया जा रहा है. बट द होल नोशन ऑफ प्योरिटी वाज चैलेंज सो मच. लाइक मध्य प्रदेश में तो इट वाज मेनली द जैन एसोसिएशंस एंड सो ऑन व्हिच केम आउट इन पब्लिक सेइंग कि ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है. But the whole idea of vegetarianism is very upper caste in our country. इन आवर तो कंट्री। जो जिस मुद्दे से आपने शुरू किया कि are there some communities in which malnutrition is higher, and I told you that it is mostly Dalit Adivasi. These are not communities which are vegetarian. And अंडा is very effective because वो बहुत न्यूट्रिशियस है. एक अंडे में आपको ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिनरल मिल जाते हैं, प्रोटीन भी हाई है. दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है अगेन, क्योंकि एक अंडा ही तो आपको देना है. तीसरा क्वालिटी कंट्रोल भी इजी है, क्योंकि एक अंडा आप उबाल के दे रहे हो. एक अंडा जैसे दाल में है, पानी मिला दिया, बच्चा को पता नहीं चल रहा है. इसमें बहुत इजी है, एक छोटा सा बच्चा को भी आप समझा सकते हो कि तुम्हारा एंटाइटलमेंट एक अंडा है.
चेक कर लो कि एक अंडा मिल रहा है कि नहीं, और वो मांग लेगा, उसको मिल भी जाएगा. सो दिस, एंड मोस्ट चिल्ड्रन लाइक एग्स, and it's unfortunate that the only reason it's not being given is to appease small communities who are even not even going to government schools actually. हाँ, वही बहुत मैं सारे भी था। वेल टू डू अमीर लोग हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से विड्रॉ भी हो गए हैं. ज्यादातर द हाई proportion of students in government schools are Dalit, Adivasi, ये. So it's feeding into the larger political agenda of casteism and ये, rather than nutrition, which is the sad thing. And then it's convenient also, फिर आपको नहीं देना है तो पैसा भी थोड़ा बच जाता है. बट आई डू वांट टू रिपीट, बट नोबडी सेइंग कि जबरदस्ती अंडा खिलाओ. वो ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए, जो खाते हैं उनको खाने के लिए, जो नहीं खाते हैं उनको ऑल्टरनेटिव्स दीजिए. बिकॉज इफ यू लुक एट द पैम्फलेट्स ऑफ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, या दैट इज द अदर बेनिफिट ऑफ अंडा, कि उतने ही कॉस्ट में आप, कोई और इतना गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं है वेजिटेरियन सोर्स. जैसे ये पैम्फलेट में क्या लिखते हैं कि बादाम खा सकते हैं. अब उतना प्रोटीन मिलने के लिए आपको एक तो जितना बादाम खाना है, कोई बच्चा बैठ के 50 ग्राम बादाम तो नहीं खा पाएगा एक टाइम में, और उसका कॉस्ट क्या है कंपेयर टू वन अंडा. बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है. सो बिल्कुल। या. दीपा सिन्हा, फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतने माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल हमने डिस्कशंस करे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन लाइट्स कैमरा साजिद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स एंड योर रिसर्च टू कम. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर डूइंग दिस.